Assalamualaikum. Good morning to all of you. How are you, students? I hope you are doing good and enjoying the best of your health. Myself, Mr. Virya Gahar, your science teacher. Okay, student, without wasting our time, we are moving towards our today's lecture. Okay, now open your books. So, okay, previously we have discussed the science skills. I have told you about what is science and what are the main branches of science. That was biochemistry and physics. We have also read in detail about the biology, then chemistry, then physics, and we have also discussed laboratory safety. Okay. We have also discussed and study taking measurements, how we can take measurements and what instrument is used for measuring length, volume, and how we measure the mass and temperature. Okay. And we have also read about the time. Okay, now we start from the heading time. We now start our today's topic, that is time. Time can be measured with a stop clock or stopwatch. टाइम हम मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच से और स्टॉप क्लॉक से, ठीक है. Seconds and minutes are the unit of time commonly used in science. Okay, commonly use units for time are seconds and minutes, but hours are also unit of time. Okay, here units of times are mentioned: hours, minutes, and seconds. These are the symbols. Hours is represent with H, minutes is represent with MIN, and second is the symbol of second. Okay, here are few questions. Test yourself, a student, to repeat your questions, to repeat your topic. There are few questions. Just recall your knowledge and answer these questions. Okay, why do scientists use measuring instrument? Scientists measuring instrument क्यों इस्तेमाल करते हैं? Which units are used to measure volume, length, mass and time? Okay, what are the units of volume, length, mass and time? इनके units क्या हैं? Which measuring instrument would you use to measure the mass of a bag of flour? आप आटे के थैले का मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके? द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ कैसे मेजर कर सकते हो? देन द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो स्टोन का? द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ टी, एक चाय के कप का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ठीक है. द टाइम टेकन टू रन अ रेस, एक रेस को रन करने के लिए, यानी कि एक रेस में रन भागने के लिए जो टाइम लिया है उसको कैसे मेजर करोगे आप? ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज मेक अ लिस्ट ऑफ 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन योर होम. आपके घर पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना, जैसे स्केल, रूलर, मेजरिंग टेप आपके पास होगा. स्केल एंड रूलर इज द सेम. ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई तो होगा, तो उसका नाम मेंशन करना है. कोई भी एनी 4. ओके, वेइंग मशीन हो सकती है जिस पे आप वेट करते हो. ठीक है, वो सब आपके क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. Okay student, what you have to do, you have to solve this question in your book except question number 1. Okay, now recall your knowledge. मैं आपको just 5 मिनट सोचें, उसके बाद मैं आपको इन सब के आंसर्स बताती हूँ. देन टैली योर आंसर्स विद माई आंसर. उसके बाद आप टैली करेंगे आंसर जो मैंने आंसर्स बताए. ठीक है, टिल देन ये स्क्रीन पे चल रहा है. जस्ट स्टॉप योर स्क्रीन, और इफ़ यू हैव बुक्स देन आप वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास किताबें हैं तो आप पेज नंबर 7 ओपन करें. वहाँ टेस्ट योर सेल्फ इन क्वेश्चंस की जल्दी से आंसर लिखें, और उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ. जस्ट मैच द आंसर्स. ओके, होप सो आपने आंसर्स कर लिए होंगे. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू साइंटिस्ट यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? साइंटिस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज देयर सेंसेस कैन नॉट गिव देम एक्यूरेट आंसर. क्योंकि वो अपनी सेंसेस से एक्यूरेट आंसर नहीं ले सकते.
ठीक है, वो जस्ट गैस ज़रूर कर सकते हैं बट एक्यूरेट आंसर ले नहीं सकते, सो दे यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं? क्यूबिक मीटर, cm क्यूब, milliliters, centiliters, liters. What units are used to measure mass? Grams, kilograms. Length, millimeters, meters, and kilometers. And to measure the time we use seconds, hours, minutes. And the unit of temperature is Celsius and Fahrenheit. Okay, these are the units which are used to measure the following: volume, mass, length and time. Okay, now come to the question number 3. Which measuring instrument would you use to measure the mass of a bag of a flour? Okay, you use electronic balance. Okay, what do you use? You use electronic balance to measure mass of a bag of flour. Okay, number 2, the length of a piece of cloth, you use tape measure. Okay, tape measure to measure the length of a piece of cloth. Okay, number 3, the volume of a stone, the volume of a stone can be measured by using weighing scale. Okay, number 4, the temperature of a cup of tea is measured with the help of thermometer. And number 5, the time taken to run a race, you use stopwatch. Okay, you use stopwatch to measure the time. Okay, number 4, your answer may vary. आपके आंसर वेरी हो सकते हैं। आप रूलर, आपके घर पे रूलर है, मेजरिंग टेप हो सकती है, वेइंग स्केल हो सकता है, ठीक है, थर्मोमीटर हो सकता है। आपके घर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, आप अपने अपने घर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट हेडिंग, मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स। डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स किस तरह लेते हैं? इफ़ यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके पास बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, मेजरिंग इज़ यूजुअली प्रिटी ईजी, मेजरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। However, ताहम sometimes things can be a little more difficult to measure and need thinking about. Sometimes जो चीज़ें ज़रा difficult हो जाती हैं, उन्हें measure करना ज़रा मुश्किल हो जाता है and need thinking about, और उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे उसको measure करें। Here is a problem number 1, आपको problem दी गई है कि आप कैसे उसको solve करोगे। How do you find the mass of a single rice grain? एक सिंगल चावल के दाने का आप मास कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, आपको 1 kg अगर राइस लेने हैं तो उसे तो आप इजीली मेजर कर लोगे कि उसका वेट क्या बन रहा है, लेकिन एक जो मास ऑफ अ सिंगल ग्रेन, आप सिंगल ग्रेन यानी कि राइस का एक सिंगल दाना लोगे, उसका मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देन सोल्यूशन इज गिवन हियर। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? राइस ग्रेन्स आर वेरी लाइट, राइस ग्रेन जो हैं बहुत हल्के होते हैं, एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू विल हैव अ बैलेंस दैट कैन मेजर वेरी स्मॉल मासेस। और आपके पास शायद ही कोई ऐसा बैलेंस होगा, लेकिन बहुत रेयर आपको मिलेगा, ठीक है, दैट कैन मेजर वेरी स्मॉल मासेस, जो बहुत ही कम मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एन ईजी वे इज़ टू वे 100 राइस ग्रेन्स एंड डिवाइडेड देयर मास बाय 100। आसान तरीका क्या है? आप 100 राइस ग्रेन्स लें, काउंट करके निकाल तो सकते हैं ना आप 100 राइस ग्रेन्स, एंड डिवाइड देयर मास बाय 100। आप क्या करेंगे? उन 100 राइस ग्रेन्स का मास लेंगे। जैसे 1 kg राइस ग्रेन्स लें आप, ठीक है, तो उसका वेट करते हैं। इसी तरह हम 100 राइस ग्रेन्स यानी कि उस 1 kg के चावल में से हम 100 दाने निकाल लेंगे राइस के, और उसका वेट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। कैलकुलेशन कैसे होगी? मास ऑफ 100 राइस ग्रेन, यानी कि हमारे पास 100 राइस ग्रेन्स का मास क्या आ रहा है? 20 ग्राम, ठीक है। अब हमने 1 मास का कितने राइस ग्रेन्स का मास निकालना है? 1 का। तो जो वेट आया था टोटल हमारे पास 100 का 20, ठीक है, उसको 20 के ऊपर रखे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.2 ग्राम, जो कि मास किसका है? 1 राइस ग्रेन का मास कितना है? 0.2 ग्राम, ठीक है। नोटिस इफ़ द राइस ग्रेन्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, अगर राइस ग्रेन बिल्कुल सेम, देखिए उनके साइज़ में भी डिफरेंस आ सकता है, अगर सेम नहीं है, देन 0.2 ग्राम इज़ द एवरेज मास ऑफ 1 राइस ग्रेन। तो एवरेज मास जो है, जो कैलकुलेटेड है राइस ग्रेन का, वो क्या है? 0.2 ग्राम, ठीक है। देखें, ज़रूरी नहीं है राइस ग्रेन, आप किसी कील, बहुत सारे कील होते हैं, ठीक है, नेल्स जिसे कहते हो आप, कील कहते हो, ठीक है, उसका भी वेट निकाल सकते हो आप। छोटे छोटे ग्रेन्स, राइस ग्रेन यहाँ पर लिए, आप पल्सेस ले सकते हो, दाल ले सकते हो, दाल के 100
क्या ले सकते हो, ग्रेन्स ले सकते हो, दाने ले सकते हो, ठीक है। उसका वेट निकालो और एक दाने का वेट निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करने का तरीका सिखाया गया है। नाउ टर्न द पेज, गो टू पेज नंबर 8. Okay. Here is problem number 2. How do you find the volume of an irregular shape object? आप irregular shape object का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, आप लोगों ने रेगुलर ऑब्जेक्ट का जो था वॉल्यूम फाइंड किया था ना, मल्टीप्लाई करके, किससे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू विड्थ, ठीक है। हाइट थी उसकी, देन फार्मूला अप्लाई करके आपने रेगुलर मास का, रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया था। बट हेयर इज़ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, आप क्या करेंगे? पुट सम वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी लेंगे, देखिए, वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट में लेंगे, एंड मेजर द वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट मेजर कर लेंगे। लाइक आपने यहाँ पर लिया 50, ठीक है। 50 क्या लिया? सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी उस पर मिलीलीटर, लीटर जो भी है उसका वॉल्यूम आपने वो ले लिया, ठीक है। मेजर कर लिया, देन केयरफुली लोअर द ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर। उसके बाद बहुत ध्यान से आपने वो ऑब्जेक्ट जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आपने उसे पानी में डालना है अंटिल इट इज़ फुली सबमर्ज, यहाँ तक कि वो पूरी डूब जाए उसमें। मेजर द वॉल्यूम अगेन, उसके बाद अगेन वॉल्यूम मेजर करना। देखिए, मेजरिंग सिलेंडर है तो आप पानी में कोई चीज़ डालते हो तो उसका पानी ऊपर की तरफ मूव करते, लुक एट हियर, यहाँ आपका स्टोन है, रेगुलर स्टोन है, वो बाहर था, तो आपने 50 आपका क्या था? वॉल्यूम था मेजरिंग सिलेंडर पर, ठीक है। देखिए, यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर यूनिट लिखा हुआ, ठीक है। आपका वॉल्यूम क्या था? यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम फॉर 50 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपने इसमें स्टोन लोअर किया, सबमर्ज हो गया, देखिए डूब गया, तो देखिए आपका वॉल्यूम बढ़ गया, ये देखिए 70 तक पहुँच गया, ठीक है। नज़र आ रहा है, ये मेजरिंग सिलेंडर है। आपने स्टोन या कोई भी चीज़ है उसे धागे से बांध लेना है, या किसी भी ऐसी चीज़ से जो आराम से उसके अंदर आप चला जाए ताकि पानी बाहर ना गिरे, ठीक है। इतना केयरफुली उसे आपने सबमर्ज करना है, ठीक है। देन आपने क्या किया? मेजर द वॉल्यूम अगेन वॉल्यूम मेजर किया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों रीडिंग्स में देखिए, यहाँ पर 50 था और यहाँ पर 70 था। 50 और 70 में जो डिफरेंस है वो किसका वॉल्यूम है? वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब, एज आई हैव शोन यू हेयर, इट इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट, हेयर वाटर एंड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना बन गया? 70, ठीक है। 70 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इस 70 में से जो आपका वाटर प्लस ऑब्जेक्ट था वो कितना बन रहा था? सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस कर देंगे। जो बाकी रेस्ट ऑफ दी वॉल्यूम है वो किसका है? वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि क्या है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, समझ में आ गई? Now come towards the third problem, that is how do you time one swing of pendulum accurately. Okay, यहाँ पर कैलकुलेट आएगा, यहाँ पर मिसिंग how do you calculate time of one swing of a pendulum accurately. आप accurately कैसे मेजर कर सकते हो पेंडुलम? ओके, पेंडुलम ये है, ठीक है, और ये इसकी स्विंग, जैसे आप झूला लेते हो, पीछे करके छोड़ते हो तो वो आगे पीछे होता है, ठीक है, तो वो स्विंग करता है। इसी तरह पेंडुलम का आप टाइम एक्यूरेटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक स्विंग का, ठीक है। आप क्या कहेंगे? नो मैटर हाउ फार अ पेंडुलम स्विंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक पेंडुलम कितनी दूर तक स्विंग करता है, ठीक है। यानी कि आप झूला, जैसे स्विंग झूले को भी कहते हैं ना, आप देखें झूले, जो आप झूला लेते हो उसे पीछे करके जितना मर्जी पीछे करके छोड़ो, ठीक है, तो इसी तरह पेंडुलम को वो ये कह रहे हैं कि आप कितनी दूर करके भी छोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। द टाइम फॉर वन स्विंग इज़ ऑलवेज द सेम, एक स्विंग का टाइम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। हाउ एवर वन स्विंग मे बी टू फास्ट टू टाइम एक्यूरेटली, लेकिन एक स्विंग बहुत तेज़ी से पूरी हो जाती है, इसलिए उसे एक्यूरेटली टाइम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या करेंगे? बट यू कैन गेट अ गुड आंसर बाय टाइमिंग 10 स्विंग्स एंड डिवाइडेड द रिजल्ट बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे? 10 स्विंग्स को लेकर रिजल्ट, गुड आंसर लेने के लिए हम 10 स्विंग्स कंप्लीट करेंगे एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय, और जो रिजल्ट आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, टाइम ऑफ 10 स्विंग्स, आपने स्टॉप वॉच ली, उस पर टाइम स्टार्ट कर दिया, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, जैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और आपने स्विंग स्टार्ट कर दिया, आपने 10 स्विंग्स जब पूरी हो गई गिनते गए, ठीक है,
तो आपने देखा कि आपके पास 50 सेकंड्स हुए। कितने स्विंग्स के? 50 सेकंड्स में उसने कितनी स्विंग्स ली हैं? 10। तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है? 1 स्विंग फाइंड आउट करनी है। जो टाइम आपके पास आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे 10। तो आपके पास क्या आ गया? एक स्विंग कितनी देर में कंप्लीट की उसने? 1.5 सेकंड्स में। ओके, टेस्ट योर सेल्फ। हेयर वी लुक द टेस्ट योर सेल्फ हम देख लेते हैं। हेयर इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज मास ऑफ वन नेल? अगेन आप व्हाट इज़ द एवरेज मास ऑफ वन नेल? एक नेल का मास क्या होगा? एक 50 नेल्स हैव अ मास ऑफ 200 ग्राम। जब आपके पास 50 नेल्स के मास का मास 200 ग्राम्स होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया, देखिए आपने अभी मास फाइंड आउट किया था पिछले उसमें, ठीक है, राइस ग्रेन वाला। बिल्कुल इसी तरह आपने नेल का फाइंड आउट करना है। देन अ कॉक फ्लोट इन वाटर सजेस्ट हाउ कुड यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर पीस ऑफ कॉक? ओके, जो कॉक है वो वाटर पे फ्लोट करता है, तो आप बताएं आप वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे इरेगुलर कॉक का, ठीक है, पीस ऑफ कॉक का। नंबर 3, अ बी बीट्स इट्स विंग 250 टाइम्स ईच सेकेंड। ईच सेकेंड में एक बी 250 टाइम्स अपने विंग बीट करती है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम फॉर अ सिंगल बीट? एक सिंगल बीट के लिए एवरेज टाइम क्या होगा ऑफ अ बी विंग? बी विंग का बी, ठीक है, बी विंग का सिंगल टाइम क्या होगा? स्टूडेंट्स ये आपको खुद करना है। देखें आप इसे सॉल्व करने की ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँगी, ठीक है, उसमें पहले मैं इसके आंसर्स, देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, आपके पेपर्स में भी आते हैं, तो आप इसको खुद ट्राई करें। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व करके खुद सिखाऊंगी। एंड इट इज़ रिक्वेस्टेड टू पेरेंट्स, काइंडली बच्चों को खुद करने दें, ठीक है। आप जो मैंने समझाया आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, आपको खुद ट्राई करना है। ओके पेरेंट्स, लेट देम डू बाय देमसेल्फ, इन्हें खुद करने दीजिए प्लीज़। इट इज़ योर टुडेज़ होमवर्क टास्क। ओके, ये आपका होमवर्क टास्क भी बन गया एक। और आपको काम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। कौन से क्वेश्चंस आपने कॉपी में करने हैं और कैसे करने हैं वो मैं आपको सब बताऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है। अभी मैंने कॉपी वर्क स्टार्ट नहीं करवाया। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 9। हेयर इज़ हैंडलिंग डेटा। हैंडलिंग डेटा, हैंडल कैसे करना है। डेटा होता क्या है बेसिकली? साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इज समटाइम कॉल्ड डेटा। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को हम बाज़ों का डेटा कहते हैं। लाइक आपने कोई ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की है डेटा की बेस पर, लाइक आपकी क्लास में आपने किसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट किया और उसकी रीडिंग कलेक्ट की है, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स। तो वो क्या हो गया? उसका डेटा हो गया कि ये काम इतने सेकंड्स में होता है, इतने टाइम लिया है इसने, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपका डेटा कहलाता है। वेरी ऑफन एन एक्सपेरिमेंट्स गिव यू लॉट्स ऑफ डेटा। वेरी ऑफन, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा डेटा देते हैं, ठीक है। डेटा इज़ वेरी यूज़फुल। डेटा बहुत कारआमद है इफ़ यू ऑर्गेनाइज, अगर आप उसे ऑर्गेनाइज करें एंड प्रेजेंट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, और उसे तरीके से अप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट करें, ताकि रीडिंग, देखें आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। क्या? हैंडलिंग डेटा अगर ऑर्गेनाइज होगा तो आपको रीड करने में आसानी होगी। लाइक डेटा ऐसे कह सकते हैं, आपके अगर स्कूल का डेटा बने, आपके 7th क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल डेटा ये हो गया आपके स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं, उसमें से डिवाइडेड हैं 3 क्लास में इतने हैं, 4 में इतने हैं, 5th में इतने हैं, 6th में इतने हैं, 7 में इतने हैं। आप एक टेबल में उसे शो कर देंगे तो उस मैडम के लिए पढ़ना आसान होगा, ठीक है। अगर यही नहीं पता होगा स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन सी क्लास में कितने हैं, तो क्या ईजी होगा? बस ये पता हो कि ये 7 का ये 8 का बच्चा है, तो क्या आप इजीली आप क्या कर सकते हो उस पर वर्क, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर एक चार्ट, एक टेबल बना होगा तो उसको रीड करना आसान होता है। ओके, डेटा प्रेजेंट करने के आसान तरीका है। ओके, इस तरह भी ले लें, एक क्लास में कितने बच्चे सक्सेसफुल हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, तो अगर वो डेटा के फॉर्म में होंगे तो इजीली बता सकोगे, वरना काउंट करना पड़ेगा 1 by 1 करके, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। ओके, डेटा रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें एक है टेबल। ओके, पुटिंग डेटा इन अ टेबल इज़ वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का एक तरीका क्या है, उसे एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाए। दिस वेदर चार्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टुगेदर। ये टेबल चार्ट देखें, ये टेबल चार्ट गिवन है, ठीक है। ये गुड एग्जाम्पल है किसकी? टेबल की। गुड एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया एक जगह टुगेदर।
एंड यू कैन कंपेयर द रिज़ल्ट क्वाइट ईजीली। आप क्वाइट ईजीली या बहुत आराम से रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। हाउएवर ताहम आ टेबल कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंफ्यूजिंग। टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है एंड बोरिंग और बोर भी कर सकती है टू लुक एट, उसको देखते हुए। दैट इज़ वाई डेटा इज़ आल्सो प्रेजेंटेड इन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। इसलिए डेटा को ग्राफ्स एंड चार्ट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हेयर इज़ अ टेबल ऑफ टेम्परेचर, लुक एट नाइट टेम्परेचर एट 11 PM क्या था, 1 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं 7 days, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लाउड एट 11 PM, क्लाउड की अमाउंट क्या थी, ठीक है। यानी कि पहले दिन देखा तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, दूसरे दिन देखा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। डे देखा दिया हुआ डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7। और नाइट के टाइम टेम्परेचर क्या था, डे 1 पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड डे क्या था 0, थर्ड डे क्या था 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह सो ऑन। अमाउंट ऑफ क्लाउड एट 11 PM, 11 PM पे टेम्परेचर क्या था और अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या थी, ठीक है। देखें शेप ना, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ थोड़े क्लाउड थे, यहाँ ज़्यादा थे, तो क्लाउड की फॉर्म में दिखाया गया। डे टाइम टेम्परेचर एट 11 AM और डे टाइम टेम्परेचर यहाँ 11 PM पे क्या टेम्परेचर था, यहाँ डे में 11 AM पे क्या टेम्परेचर, ठीक है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह अमाउंट ऑफ क्लाउड एट 11 AM, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, यू कैन ईजिली कंपेयर द डेटा। आप बता सकते हो कि कितनी वेरिएशन आई, नाइट टाइम में टेम्परेचर क्या था और डे टाइम में क्या टेम्परेचर मिल रहा है हमें, और क्लाउड्स की फॉर्मेशन क्या है, क्लाउड कितने बन रहे हैं, डे टाइम में कितने बन रहे हैं, नाइट टाइम में कितने बन रहे हैं, ये सारे आप इजीली रीड आउट कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ कम टू द बार चार्ट। बार चार्ट क्या है? बार चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज अ पिक्चर। एक्सपेरिमेंट को पिक्चर की फॉर्म में शो करता है। यू कैन सी एट अ ग्लैंस, आप बस एक नज़र में देख सकते हो व्हाट द रिजल्ट शो, रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं। दिस बार चार्ट शो द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये बार चार्ट क्या कर रहा है, हाइट ऑफ स्टूडेंट बता रहा है, ठीक है। ये हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये हाइट्स हैं, ठीक है। अब देखें 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है, 152 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा 160 सेंटीमीटर हाइट कितने स्टूडेंट्स की है, 4। आप इजीली बहुत क्विकली बार ग्राफ देखकर फ़ौरन से पहचान रहे हो कि कितने एक क्लास में। देखें फॉर एग्जांपल 6 क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एग्जांपल दे रही, और उसमें से 4 की हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कोई क्लास में आता है, उसके पास कोई डेटा नहीं होगा, तो 1 बाय 1 करके खड़ा करके मेयर करेगा, ठीक है, कि ये बड़ा है, शायद ये लंबा है या इससे छोटा है। तो जब आपके पास रैंडमली डेटा मौजूद है, 4 क्लास में 6 क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिसकी हाइट इतनी है, 6 क्लास में 2 बच्चे इतने हैं जिनकी हाइट 152 है, 6 क्लास में 3 बच्चे इतने हैं जिनकी हाइट 153 है। आप इसी तरह पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट का भी डेटा बना सकते हैं, ठीक है। इट विल बी ईजी। फिर ये हो जाएगा पूरे स्कूल में 4 बच्चे इतने हैं जिनकी हाइट इतनी, ठीक है। यानी कि ईजी हो जाता है बड़े लेवल पर। जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो तो आपको इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके उसे रीड आउट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। ये मकसद है आपका टेबल्स, बार चार्ट और ग्राफ्स का। ओके, नाउ कम टू टेस्ट योर सेल्फ हेयर। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? लुक एट द टेबल, टेबल को देखें। व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर? हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, इस टेबल को देखें और बताएं हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है। देन what was the lowest temperature? lowest temperature क्या है? describe the relationship between the amount of cloud and the night time temperature. ओके, इसको सी क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे, ये मैं खुद करवाऊंगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये मैं खुद करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 लुक एट द बार चार्ट। ओके, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट? स्मॉलेस्ट हाइट क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हाइट? मोस्ट कॉमन हाइट क्या है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर और मोर? और कितने स्टूडेंट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा है। ओके, आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ABC, ये आपने खुद करना है। आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क मैं खुद करवाऊँगी। ये वाला क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगी, सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं खुद करवाऊँगी। और पिछला टेस्ट योर सेल्फ जो है पेज नंबर 8 पे जो है वो, और इसके आंसर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, ठीक है। नाउ आई हैव फ्यू वर्क ऑफ कॉपी। आज के लिए इतनी ही रीडिंग थी, तो ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रीड आउट करेंगे कल।
ओके, लेक्चर में फ़िलहाल आपकी आज के लिए इतनी ही रीडिंग है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा कॉपी वर्क करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह कॉपी वर्क करना है, ठीक है। मैं आपको शो करती हूँ। जब आप अपनी कॉपी ओपन करेंगे और सबसे पहले इंडेक्स देख लें। हाउ विल यू मेंटेन द इंडेक्स? यू विल हैव टू राइट द सीरियल नंबर 1, मतलब मीन्स जो चैप्टर होगा, जिस सीक्वेंस से आपको करवाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 करवा रही हूँ इसलिए सीरियल नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, आपने इस तरह हेडिंग डालनी है। आपने साइंस स्किल्स की हेडिंग डालनी है। देन आपको मैं आज क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, तो देन आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है और आज की डेट। देखिए, आपको जब मैं जिस डेट पर क्वेश्चन आंसर के बाद मैं ट्रू फॉल्स करवाऊंगी या फिलिंग द ब्लैंक्स करवाऊंगी, जो भी करवाऊंगी, तो आपने उस डे की डेट डालनी है। लाइक अगर मैं आपको कल एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट कल मैं आपको जैसे अगर करवाती हूँ ट्रू फॉल्स, तो आप यहाँ पर कल 23 जून की डेट डाल के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स लिख देंगे। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स मैं आपको 24 को करवाती हूँ, तो आप यहाँ ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स की हेडिंग डालकर यहाँ पर 24 लिख देंगे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपने ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करना है एंड ब्लू एंड ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने कोई भी कलर मार्कर इस्तेमाल नहीं करना। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ कलर मार्कर्स, ओके, नॉट एनी अदर कलर। यू हैव टू जस्ट यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन एंड ब्लू एंड ब्लैक मार्कर्स। नाउ ओपन द कॉपी। जब आप ओपन करेंगे कॉपी, इस तरह आपके पास वाइट पेज होगा और एक लाइनिंग पेज होगा, ठीक है। इस तरह आपने फर्स्ट टर्म की हेडिंग डाल लेनी है वाइट पेज पे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द चैप्टर नंबर एंड हेडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज। यहाँ टॉप ऑफ द पेज पे आपने डालनी है, आपने सेपरेट पेज पे चैप्टर की हेडिंग नहीं डाली। एंड यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे ऑन एवरी पेज। हर पेज पर, अगर मैं आज का काम आपका 3 पेजेस पे भी आ रहा है, तो आपने हर पेज पर डेट और डे लाजमी डालनी है। इस तरह क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज़ करते हैं और क्वेश्चन लिखने से पहले इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन लिखना है, देन एक लाइन छोड़नी है, देन आंसर स्टार्ट करना है। और जहाँ आपका क्वेश्चन एंड हो जाए उसके बाद 2 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि प्रॉपर कॉपी वर्क लगे, नीट एंड क्लीन, ठीक है। समझ में आ गई? लुक एट, यू हैव टू मेंटेन द कॉपी लाइक दिस, ओके स्टूडेंट्स। आपने सेपरेट पेज पे हेडिंग नहीं डालनी है, आपने इस तरह फर्स्ट टर्म की हेडिंग डाल लेनी है, चाहे तो बड़ी बड़ी डाल लीजिए, ठीक है। एंड यूँ आपने डेट एंड डे डालनी है। गॉट इट? ये चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो भी आप सेपरेट पेज पे नहीं डालेंगे, टॉप पर डालेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द वर्क, हम काम स्टार्ट करते हैं अपना, ओके। स्टूडेंट्स, हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की इस तरह हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स की। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस एंड व्हाई डू वी स्टडी साइंस। दिस क्वेश्चन आर नॉट प्रेजेंट इन योर बुक। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, आप देख लें। व्हाट इज साइंस एंड व्हाई डू वी स्टडी साइंस? Okay. Science is about obtaining knowledge by observation and experimentation and using that knowledge to describe and explain natural things. We study science because it helps us to understand the world around us, solve problems, and to train our mind to think logically and systematically. Okay. Okay student, stop your screen for a while and note down the answer of the question. You have to write the question as well, including the question you have also write the answer from here, okay. Now come to question number 2. Define the following terms. इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको उसी तरह काम करना है जैसे मैंने कॉपी पर आपको शो किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालनी है, देन आपको इस तरह डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चन का पार्ट है मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड टाइम। आंसर की हेडिंग डालेंगे, देन मास की हेडिंग डाल के मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, ठीक है। यूनिट, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम और किलोग्राम्स। सेकेंड हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट
unit. The unit of volume is cubic centimeter, milliliter, centiliters. Okay. Number 3, temperature means how hot something is. Unit of temperatures are degree Celsius, degree Fahrenheit. Okay, then here is the definition of time. The measure or measurable period during which an action, process or condition exist or continue. ठीक है, वो टाइम कहलाता है. यूनिट्स क्या है, यानी कि मेजरेबल पीरियड जिसके अंदर कोई एक्शन प्रोसेस में होता है या कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है या कंटिन्यू होती है या कोई प्रोसेस कंटिन्यू होता है. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं. यूनिट ऑफ टाइम और आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. यूनिट क्या है, मिनट्स है. ठीक है, आवर्स है, मिनट है, और सेकेंड है. ठीक है, ये आपके आज का वर्क है. स्टॉप कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए. This is all about today's topic. I hope that you will complete all the tasks which I have given to you. आपको जो मैं टास्क देती जा रही हूँ आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे, अपना कॉपी वर्क मेंटेन करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द वीक जब आप मेरे पास कॉपीज आएँ तो इट इज़ वेल मेंटेन. ओके, होप सो यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम. कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी. इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट. ओके, we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care yourself. Fi aman Allah.